20 জন ছাত্রছাত্রী তারা নিট পরীক্ষার্থী 20 জন ছাত্রছাত্রী নিহত হয়ে গেল, আত্মহত্যা করলো। এর দায় কার? একজন ছাত্র একজন ছাত্রী 12 বছর 13 বছর 14 বছর ধরে পরিশ্রম করে লেখাপড়া করে, কোনো দিন খেয়ে কোনো দিন না খেয়ে স্কুলে কলেজে প্রাইভেট টিউশনে যায়। তার 12-13 বছরের পরিশ্রমের ফল তারা মনে মনে আশা করেছিল নিট পরীক্ষায় পাশ করে ভারতবর্ষের ডাক্তার হয়ে ভারতবর্ষের সেবা করব। কিন্তু পর 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 প্রশ্নপত্র ফাঁস। এই ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নপত্র কেন লিক হবে? এর দায় কে নেবে? 20 জন ছাত্রছাত্রী নিট পরীক্ষার্থী তারা মারা গেল, এর দায় কার? সেই আন্দোলনের দাবিতে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছিল ছাত্রছাত্রী, ককরোচ জনতা পার্টি এবং দেশের যুবক ছেলেমেয়েরা। লোকতন্ত্রের শক্তি কি? গণতন্ত্রের শক্তি কি? কাকে বলে? লোকতন্ত্রের শক্তি, গণতন্ত্রের শক্তি বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, অবস্থান বিক্ষোভ, ধর্না। যে সমস্ত সরকারি প্রতিনিধি, এমএলএ, এমপি বা সরকারি আধিকারিক যখন ভুল করে, তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের আইন মেনে ধর্না, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। এই প্রতিবাদের মাধ্যমে, ধর্নার মাধ্যমে, বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে দেওয়া হয় যে আপনার অমুক আধিকারিক, আপনার এমএলএ, আপনার এমপি ভুল করছে, আপনি এটাকে সংশোধন করুন। এটাই হচ্ছে লোকতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই জিনিসটাই ছাত্রছাত্রীরা শুরু করেছিল। 20 জন ছাত্রছাত্রী নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র লিক হওয়ার ফলে তারা আত্মহত্যা করলো। দিল্লির যন্তর মন্তরে 20 দিন 21 দিন ধরে পানি পান করে অনশন চালাচ্ছিল দিল্লি পুলিশ। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী সোনাম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করলো। সংসদ অভিযান শুরু হলো, সেখানেই গণ্ডগোল, ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ, প্রচুর ছাত্রছাত্রী জখম হয়েছে, যেটা আমরা খবর পাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের দাবি সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী যে সমস্ত দলগুলো আছে তাদের দাবি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। এই দাবিতে এই অনশন, এই আন্দোলন, এই প্রতিবাদ চলছিল। তারপর গতকালকে রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, কানহাইয়া কুমার, কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা, তাবড় তাবড় সংসদ সহ বিরোধী দলের অখিলেশ যাদব, সমাজবাদী পার্টির সহ অন্য যে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের সংসদ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর ঘরের বাইরে ধর্না, বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করে। তাদের দাবি 20 জন ছাত্রছাত্রী মারা গেছে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। এই দাবিতে ধর্না প্রদর্শন শুরু হলো। রাত্রিতে রাহুল গান্ধীকে পুলিশ আটক করলো। এই বিষয় নিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়েছে। এক এক জায়গা থেকে খবর উঠে আসছে, বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়েছে। কড়া আক্রমণ জানাচ্ছেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। কি বলেছেন বিস্তারিত শোনাবো আপনাদের। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বরা কি বলছেন, কড়া ভাষায় আক্রমণ করে কি বলেছেন শোনাবো। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। এই যে 20 জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করলো নিট পরীক্ষা না দিতে পেরে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে, সরকারের কাছে তারা দাবি জানালেন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। যারা শিক্ষা এই দপ্তরের সঙ্গে জড়িত, যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি চাই, এই দাবি জানিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু সেটা হলো না। আন্দোলন বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এই ঘটনা। কি বলছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব শোনাবো আপনাদের। माफी मांगो
ताकत क्या होती है। लोकतंत्र की ताकत धरना प्रदर्शन होती है ताकि जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। ये पहली बार देखा गया है कि जब हमारे देश के युवा जंतर मंतर में बैठे 18 साल से लेकर 24-25 साल के युवा थे, क्या मांग थी उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर लीक का जो बच्चों ने 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो जिम्मेवार है उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए था। बच्चों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, समाज के जो महत्वपूर्ण संगठन है उन्होंने उन बच्चों का समर्थन दिया। हमारे प्रसिद्ध वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने समर्थन दिया, और सबसे बड़ी बात मुख्य विपक्षी पार्टी के हमारे नेता जो लोकतंत्र में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी ने उस प्रोटेस्ट में उनका समर्थन किया और कहा कि निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा, और जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता है, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया, और ये सब चीजें जो उन्होंने की है ये इस चीज को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। और मेरा ये मानना है नीट में लाखों युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, और नीट का पेपर लीक हो जाए जो हम आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनते हैं, और इस देश के जो डॉक्टर है पूरी दुनिया में अपना नाम को चमकाए हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के डॉक्टर है, और हिंदुस्तान की संस्कृति में जो दया भाव है वो पूरे विश्व में इन डॉक्टरों के माध्यम से दिखाई देता है। और इस पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार सरकार ने अड़ियल रवैया उठाया किया है उन्हें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और राहुल गांधी जी के साथ जिन लोगों के जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे अपने बच्चे हैं वो जो नीट का पेपर देते हैं, हमारे अपने बेटे हैं, उन सबको के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो मिल बैठ के समाधान करके उनके खिलाफ FIR को खत्म करना चाहिए, और जो बच्चों की मांग है उसको मानना चाहिए। सोनम वांगचुक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बच्चों के समर्थन में बैठे हैं, उनके खिलाफ भी जो केस दर्ज है वो भी वापस होने चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो कोई अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, वो उस प्रदेश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो प्रदेश का युवा आज तनावग्रस्त है, उस तनाव को दूर करने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को जितना तनाव इस बार सरकार से मिल रहा है उसके लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये धरना दिया गया है, जिसमें हम सब लोग मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री महोदय सब लोग इस राहुल गांधी जी के समर्थन में बैठे हैं, और हम चाहेंगे कि राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा कोई योगदान दे सके। तो इस धरने के माध्यम से हम वो योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश के अंदर दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी। तो आज राहुल गांधी जी भी धरने पे बैठे वहां पे, पूरी कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि सदन में क्या जरूरत है, सदन में क्या आवश्यकता। तो हमने कहा कि प्रदेश के कई लाखों छात्र भी नीट में थे, यहाँ भी परीक्षाओं के मामले हैं, और आप क्या इतने संवेदनशील विषय पर अगर हमारे वरिष्ठ सदस्य अगर आप सूचना दे रहे तो वो छात्रों को लेके मजाक बना रहे कि यहाँ पर सदन में आवश्यकता क्या है। तो यही सब बातें हैं कि पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से छात्रों का लाठीचार्ज हुआ और यहाँ पर ये छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही, इसी को लेके आज हमने यहाँ पे धरना चालू कर दिया। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पर, कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ कोई समाधान नहीं होगी, बात नहीं होगी सरकार से, जब तक बैठेंगे।
जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता 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 है जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद क्या बेटा कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो